Our today's topic is gastritis. As the name indicates, gastra means stomach and itis means inflammation. It is somewhat related to the peptic ulcer disease. Introduction: the word gastritis comes from two words, gastro which means stomach and itis means inflammation. So it is the inflammation of stomach. Normally जो stomach lining है तो it contains special cell. It contain goblet cell, parietal cell, chief cell. Goblet cell secrete mucus, parietal cell secrete HCl, and chief cell secrete an enzyme pepsin. So stomach lining contains special cell that produce acid and enzyme. Acid, that is HCl, hydrochloric acid, and enzyme is pepsin, which help in breakdown of food for digestion, and mucus protect the stomach lining from the acid. जो गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं वो स्टमक लाइनिंग को एसिड या एंजाइम से प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज दे बोथ आर देयर pH is acidic. When stomach lining is inflamed, जब स्टमक की जो लाइनिंग है विच सिक्रीट म्यूकस वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी तो वो लेस एसिड लेस म्यूकस सिक्रीट करेगी. After that definition, gastritis is the inflammation of gastric mucosa and is classified as either acute or chronic. It is mainly of two type, acute or chronic. After that, incidence. Normally जो इसका incidence है 50 to 60 ईयर ऑफ एज में ज़्यादा चांसेस हैं गैस्ट्राइटिस होने की, क्योंकि इस एज में जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है इट बिकम थिन विद एज. After that, the types of gastritis, it is of different type: acute gastritis, chronic gastritis. Chronic gastritis is of two type: chronic erosive gastritis, chronic non-erosive gastritis. First is acute gastritis. Acute मतलब which is for a short time, short duration. तो it is the painful inflammation of the lining of the stomach. इसमें जो symptom है वो ज़्यादा ये acute gastritis is more symptomatic. तो इसमें जो inflammation है sudden होगी और may involve bleeding of the stomach mucosa. But जो bleeding है it subside within 24 hours. And the main cause of acute gastritis is the Helicobacter pylori. It is a bacteria, Helicobacter pylori. It causes the inflammation of the gastric mucosa. जब gastric mucosa damage हो जाएगी, it doesn't secrete mucus which protect the stomach from the acid or the pepsin. Then chronic gastritis. क्रॉनिक इट अकर मेनली इन द ओल्डर एज. जब किसी पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक गैस्ट्राइटिस रहे तो इट कम्स इन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस. तो इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड दिस इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ अपर डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट फॉर ईयर. तो इसका भी जो मेन कॉज है दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इसका मेन कॉज है. एंड chronic gastritis, the sphincter above the stomach, that is gastroesophageal sphincter, fail to do the job properly. जिस वजह से जो acid है it should be regurgitated to the esophagus. And it is mainly of two type: chronic erosive gastritis or non-erosive gastritis. इरोसिव में जो म्यूकोजल लेयर है उसका इरोजन हो जाएगा, वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा. और नॉन इरोसिव में इरोजन नहीं होता है. तो इरोसिव गैस्ट्राइटिस, इन दिस द म्यूकोजल इरोजन कॉज ड्यू टू द डैमेज टू द म्यूकोजल डिफेंसेस. नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस, द बॉडी एक्सीडेंटली टारगेट द स्टमक एज अ फॉरेन बॉडी. इसमें जो स्टमक है, स्टमक के सेल्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है विच कॉजेज डैमेज टू द स्टमक लाइनिंग. आफ्टर दैट एक्यूट स्ट्रेस अल्सर, दीज आर ड्यू टू द स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इलनेस, इंजरी, सर्जरी एक्सेट्रा. ठीक है, जब पर्सन को स्ट्रेस होगा तो उसको जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट रहेगा विच इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द HCl. HCl ज़्यादा सिक्रीट होगा, इट डिस्ट्रॉय द लाइनिंग ऑफ द stomach. Then atropic gastritis. Atropic means decrease in size. कि जो
गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी, उसके सेल धीरे धीरे थिन हो जाएंगे. एंड मोस्ट सेल प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव एसिड, एंजाइम आर लॉस्ट. दिस टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस यूजुअली अकर ड्यू टू द, इसका भी मेन कॉज ऑटो इम्यून डिजीज है. आफ्टर दैट द कॉजेज सेम है जैसे पेल्विक पेप्टिक अल्सर डिजीज में था. बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय द एच पाइलोराई बैक्टीरिया. एच पाइलोराई बैक्टीरिया क्या करता है, इट अफेक्ट द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक. दिस इज द एंट्रम पार्ट, मेनली इस पार्ट को ये अफेक्ट करता है. एंड इट causes the inflammation of the gastric mucosa. This often is symptomatic. After that, next is regular use of painkiller. The person who use painkillers such as ibuprofen etc. NSAID जो mainly use करते हैं, these cause the irritation of the gastric mucosa. Other disease conditions such as any type of infection and autoimmune disease, कॉर्न डिजीज में क्या होता है, इट इज अ इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन. इसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी. sarcoidosis as shown here, it is the enlargement of the lymph node, scarring and granulation formation of the lymph node. दिस इज द कॉर्न डिजीज. इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी इंटेस्टाइन में, अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी. अदर इज ग्रेनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस. एंड द अदर रिस्क फैक्टर आर ओल्डर एज. जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे स्टोमक लाइनिंग थिन हो जाएगी. एक्सेसिव अल्कोहल यूज, अल्कोहल इरिटेट द म्यूकोजल लाइनिंग. इरिटेशन जब होगी तो म्यूकोजल लाइनिंग डैमेज हो जाएगी. स्ट्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ट्रॉमा है, इंजरी है, सर्जरी है, उसकी वजह से स्ट्रेस जब पर्सन लेगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होगा विच इंक्रीज द HCl सिंथेसिस. बाइल रिफ्लक्स डिजीज, जैसे अगर किसी की गैस्ट्रेक्टमी हुई है या स्फिंक्टर है, पाइलोरिक वॉल्व में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उस वजह से जो बाइल है, बाइल नॉर्मली सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. इट फ्लो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पाइलोरिक वॉल्व, जो बाइल है इट गोज इनटू द स्टमक. तो जो बाइल है इट इज ऑल्सो एसिडिक इन pH, तो ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डैमेज करेगा. आफ्टर दैट फूड सब्सटेंसेस, जैसे कि स्पाइसी फूड्स हैं, चॉकलेट, पेपरिका, टी एक्सेट्रा, दीज कॉजेज द इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा. या अगर कोई ऐसे खाना खाता है विच इज़ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, काफ़ी गर्म खाना अगर खाएं, उससे भी गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज होता है. ऑटो इम्यून डिजीज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें सेल के अगेंस्ट, जो हमारे स्टोमक में म्यूकस लाइनिंग है उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो हो जाएगा. आफ्टर दैट द पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू etiological factor such as Helicobacter pylori, any type of autoimmune disease infection, gastric mucosa become edematous and hyperemic. Hyperemic means कि जो gastric mucosa है वहाँ पे blood supply increase हो जाएगी due to inflammation. edema हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे inflammatory changes हो रहे हैं. तो gastric mucous membrane undergo superficial erosion and obstruction. जो mucous membrane है वो superficial erosion उसका होगा एंड गैस्ट्रिक जूसेस की सिंथेसिस स्कैंटी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद वेरी लिटिल एसिड. सुपरफिशियल अल्सरेशन होगी. पहले जो अल्सर फॉर्मेशन है, गैस्ट्राइटिस है, वो सुपरफिशियल है, एक्यूट है, बट जैसे अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है इट बिकम क्रॉनिक. ठीक है, तो सुपरफिशियल अल्सरेशन होगी विच में लीड टू हैमरेज, क्योंकि एक्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है दैट इज मोर सिम्टोमेटिक, उसमें ज़्यादा सिम्टम अपीयर होते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस. तो डैमेज फ्रॉम इरिटेंट रिजल्ट इज इंक्रीज, इंट्रासेलुलर pH इंक्रीज हो जाएगी, इम्पेयर्ड एंजाइम फंक्शन, डिसरप्टिव सेलुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम जाएगी, वेस्कुलर स्टेसिस की जो स्टेसिस का मतलब हुआ कि जो ब्लड सप्लाई है दैट शुड बी लो, स्लो ब्लड सप्लाई ट्रांसमिट होगी, वीनस
system के through, and there may be tissue death. After that the symptom include epigastric discomfort होगी, जब gastric region है, epigastric region वहाँ पे discomfort होगी, abdominal tenderness मतलब pain on touch, cramping pain होगी, belching में क्या होता है, in this gas should be passed through the mouth, है ना, स्टोमक की जो गैस है that should be passed through the mouth, that is belching. रिफ्लक्स होगा, जैसे कि जो स्टमक एसिड है HCl है वो रीगर्जिटेट हो जाएगा ओइसोफेगस में. सुवेयर नोजिया, वॉमिटिंग, हिमेटामेसिस, ब्लड इन वॉमिट, समटाइम GI ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है. बट अगर किसी कंटेमिनेटेड फूड की वजह से गैस्ट्राइटिस है तो डायरिया पर्सन को 5 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा विद इन द इंजेक्शन ऑफ फूड. जब पर्सन ने खाना खाया उसके 5 घंटे के अंदर अंदर पर्सन को डायरिया हो सकता है. आफ्टर दैट एनोरेक्सिया, फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिस्पेप्सिया मीन्स इंडाइजेशन, वैग्यू, एपिगैस्ट्रिक पेन. वैग्यू का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब उसका कॉज अनक्लियर रहेगा कि एपिगैस्ट्रिक पेन क्यों हो रही है ना तो गैस्ट्रिक है ना कुछ. नोजिया, vomiting, intolerance to spicy and fatty foods. After that diagnostic evaluation में history collection, फिजिकल एग्जामिनेशन, H पाइलोराई टेस्टिंग करते हैं. मैंने आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी बताया है कि H पाइलोराई टेस्ट ब्रीथ में भी करेंगे, ब्लड में भी करेंगे और यूरिन में भी करेंगे. Then the esophagogastroduodenoscopy should be done. It is the endoscopic examination of the esophagus, stomach and duodenum. Histological examination, biopsy लेंगे, CBC काउंट चेक करेंगे एनीमिया के लिए, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, क्योंकि जैसे अगर फीसिस में ब्लड है तो इस नॉर्मली वो क्या है आइज के थ्रू विजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास फंक्शन. आफ्टर दैट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीएमेटिक देंगे अगर पर्सन को नोजिया वॉमिटिंग है. अगर H पाइलोराई इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्टर्ड. एंटासिड देंगे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटोन पंप इनहिबिटर एंड ब्लैंड डाइट देंगे. And if ingestion of NSAID is a problem, then prostaglandin analog may be prescribed to protect the stomach mucosa and inhibit gastric acid secretion. Cytoprotective agent देंगे जो gastric mucosa को protect करेगा. एंड अगर फिर भी पर्सन का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है 1 वीक ट्रीटमेंट ली बट फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो जो ट्रीटमेंट है इट शुड बी रिपीटेड फॉर एन एडिशनल 1 वीक, है ना. 1 वीक के लिए फिर से वही ट्रीटमेंट को रिपीट करना है. अगर पर्सन को अनीमिया हो गया, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हेमरेज हो गया, तो उस कंडीशन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विटामिन B12 के एडमिनिस्टर करने हैं. देन डाइट थेरेपी, food and fluid are withheld until nausea and vomiting subside. Once the client tolerates food, the diet include decaffeinated tea, gelatin, toast and simple bland food. स्पाइसी फूड कम लेने हैं, कैफीन कम लेना है, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करना है. एंड कॉम्प्लिकेशन आर ब्लीडिंग और हेमरेज हो सकती है, पर्निशियस एनीमिया और गैस्ट्रिक कैंसर में ऑल्सो अकर. आफ्टर दैट नर्सिंग मैनेजमेंट, acute pain related to irritated stomach, mucosa, imbalanced nutritional status, less than body requirement related to inadequate intake of nutrition, risk for imbalanced fluid volume related to insufficient fluid intake and excessive fluid loss subsequent to vomiting, anxiety related to treatment, deficient knowledge about dietary management and disease process. आफ्टर दैट हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे, अवॉइड NSAID, स्टॉप स्मोकिंग, ड्रिंक फ्लूइड एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, है ना. अवॉइड अल्कोहल ऑल्सो एंड टेक सॉफ्ट फूड, ड्रिंक क्लियर लिक्विड. दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक.